the honorable head of the department, who is affectionate and devoted to her professional commitment. Through her dedication, the department will be more competent and more vibrant, more shining, and become excellent. Now we would like to hear some valuable messages from our respected HOD ma'am. A very good afternoon, Honorable Dean Sir, faculty members of Department of Education, seniors, research scholars, and newly admitted research scholars of Department of Education. First of all, I would like to congratulate the newly admitted research scholars of in the Department of Education. Our DRC members have selected 8 of you from hundreds of applicants who applied in this to do research from this university. So I congratulate you and welcome you to the Department of Education, Central University of Jharkhand. Now, the word, dear scholars, the research scholar, the prefix that is added before your name, research scholar Anamika, research scholar Sumedha, research scholar Abhilasha, and so on. So the prefix that is added with your name expects much from you. Means, in the sense, like you are expected to be more dedicated, sincere, honest, truthful, and make yourself research oriented. You have joined this university as a research scholar, so involve yourself in research activities. I want to say that keep yourself, whenever you get time, keep yourself studying research papers. Whenever you get time, do some induction program or some training program or some try to attend some webinar, seminar or conferences, and through that you will be more acquainted towards the research work or research that will inculcate more research orientation among you all. And next, I would like to put some my view regarding this coursework or as a research scholar, what I expect from you all. See, the sir also said that कि अब आप लोग की strength, you are I think 17 now, 17 or 18, 17 now. One has left recently. So you are 17, है ना? So you all are strength of department, and department will grow with the help of all of you. आप सभी के help से department grow करेगा, will be able to achieve heights, will be able to achieve our goal with the help of all of you, with the help of faculty, with the help of research scholars. You are next to faculty. आप लोग की हेल्प से हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं. लाइक द इंडक्शन प्रोग्राम ही आप देख रहे हैं. आई जस्ट असाइन ड्यूटीज टू अनामिका, सुमेधा, अताउर एंड ऑल कि आप लोग ये प्रोग्राम करा दीजिए. हाउ ब्यूटिफुली दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम. इन द सेम वे देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज वी कैन डू टुगेदर, राइट? सो डिपार्टमेंट विल रीच हाइट्स विद द हेल्प ऑफ यू ऑल. तो आप लोग ये भी सोचिए, ठीक है, रिसर्च वर्क आपका है और आप अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखेंगे, जैसे कोर्स वर्क खत्म हुआ उसके बाद आप जब अपना रिसर्च ओरिएंटेशन बढ़ाएंगे तभी आप अच्छा पेपर लिख पाएंगे, है ना? तो पेपर वगैरह आप जितना बढ़िया लिखेंगे उतना अच्छा आपका नाम होगा, तो डिपार्टमेंट का ऑब्वियसली नाम होगा, है ना? तो आप लोग जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि आप वहां पे उसको अवेल करिए. लाइक गूगल स्कॉलर आप देख सकते हैं, वहां पे आप रजिस्टर करिए, गूगल स्कॉलर में रजिस्टर करिए, अपना ऑर्सिट आईडी क्रिएट करिए. देन आप जब ये सब में इन्वॉल्व होगे तभी आपको लगेगा कि आप कुछ गेन कर रहे हो. अदरवाइज बुक्स, ये वो डिपार्टमेंट, वो सब तो चलता ही रहेगा. और नाउअडेज विद सिंगल क्लिक आप जो ये शोध गंगा वगैरह अवेलेबल है, इतने सारे उसमें आप देखिए रिपोजिटरीज हैं कि आपको बहुत सारे मैटर्स मिलेंगे, है ना? क्योंकि अभी हम लोग की जो यूनिवर्सिटी है, देयर आर चैलेंजेस तो है ही है, बिकॉज वी आर रनिंग कोर्सेज इन 2 campuses, राइट? लाइब्रेरीज इन ओल्ड कैंपस, है ना? एंड इन न्यू कैंपस ऑल्सो देयर आर चैलेंजेस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑल. तो ये जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस तो ठीक है, रहेंगे. लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस, है ना? वो जिंदगी क्या है जिसमें चुनौतियां ना हो, राइट? और ऐसे कहते भी है ना कि भाग्यशाली वो नहीं होता जिसे सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होता है जिससे जितना मिलता है उसको वो अच्छा बना लेता है. सो लेट्स स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट ये नहीं है, वो नहीं है. ठीक है, जो है होगा, अदर्स बाकी चीजें भी आएंगी. ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, आएंगी. बिकॉज अभी रिसेंटली वी हैव सेंट अ लिस्ट ऑफ आई थिंक 400 बुक्स हमने रिकमेंड की है
मैक्सिमम उसमें रिसर्च वगैरह की है। तो लाइब्रेरी भी एनरिच होगी और थोड़े दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी वगैरह भी आ जाए, हो जाए। बट वही मेरा कहने का ये मतलब है कि आजकल तो विद अ सिंगल क्लिक देयर आर सो मेनी OERs हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, आप उसको भी अवेल करके अपना थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेशन बढ़ाइए, और आप जितना बढ़िया करेंगे उतना अच्छा फिर डिपार्टमेंट का भी नाम होगा। तो और दूसरी चीज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल इज लाइक, अभी आप लोग जैसे किसी ने भी अगर माइग्रेशन वगैरह नहीं सबमिट किया है ना, मैं आज इस डे पे बोलना चाह रही हूँ क्योंकि कई बार होता है हम लोग के पास भी बहुत सारे वर्क है, ओके यू गिव एन अंडरटेकिंग दैट मैम आई विल सबमिट आफ्टर 15 डेज, हम भी दूसरे वर्क में बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और आप लोग भी कुछ और कोर्स वर्क एंड ऑल सब स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप में से किसी ने भी नहीं दिया है तो आप अपना माइग्रेशन वगैरह जल्दी से जल्दी सबमिट करिएगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू विल सबमिट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपका वहां पे क्या होगा, रैक जैसे हम लोग रैक वगैरह फॉर्म करेंगे वो नोटिफाई नहीं होगा, एंड देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन में जो यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट में लेट होगा, तो जितना ये सब प्रोसेस लेट होगा उतनी आपकी फेलोशिप लेट मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग क्या होता है थोड़ा सा ढीले बढ़ जाते हैं, फिर लास्ट में आते हैं मैडम ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो अभी से अगर आप चीजें ठीक से ले लें कि ओके जो भी मैंने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिटेड, आई सबमिटेड राइट टाइम, देन हम लोग के पार्ट से कोई लेट नहीं होगा। और वो भी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट। फॉर्मेट इज इनके पास है, अभी नहीं बट 1, 2, 2, 3, 4 महीने बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट इज विद योर सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स, आप लोग उनसे ले करके यू आर लकी, जैसे लवीना द सीनियर मोस्ट रिसर्च स्कॉलर शी इज हियर, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ उसको कई सारे ऐसे थोड़ा सा हुआ होगा किससे पूछे क्या करें, डीन सर से, उसने जैसे भी अपने सुपरवाइजर से बात करा, काम किया। बट यू पीपल आर लकी दैट यू हैव सो मेनी सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स एंड दे विल हेल्प यू, है ना, ये आपको हेल्प करेंगे। और जो भी कुछ डाउट्स हैं वो आप पूछ पाछ करके अपना काम टाइमली करिए, है ना। ये नहीं कि ठीक है हमने दे दिया फिर गैप हो गया फिर आ रहे हैं, तो नो। और दिस ऑल्सो यू नो दैट कि आपको ये जो कोर्स है यू हैव रेजिडेंशियल है ना, मतलब आपको 2 years यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे आना रहना, और 4 weeks अगर आप कंटिन्यूस एब्सेंट होते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। और बेटर है PhD ऑर्डिनेंस इज गिवन ऑन वेबसाइट, राइट, इन एग्जाम सेक्शंस आप जब क्लिक करेंगे तो देयर इज PhD ऑर्डिनेंस ऑल्सो, तो आप अपना वाला पोर्शन वहां से देख सकते हैं, कर सकते हैं। उससे भी क्या होता है आपको यहाँ का सब प्रोसेस पता चल जाएगा और कहीं कुछ डिले नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो अल्टीमेटली वो अदर डिपार्टमेंट्स ने ब्लेम, मतलब वो पूछते हैं हेड, मतलब मेरे पास ही आता है कि क्यों आप लोग लेट कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। तो आज मैंने सोचा कि सभी एक साथ गैदर है तो ये पॉइंट्स भी रख दूं ताकि सारी चीजें हम लोग की कंटिन्यूएशन में चले और अच्छा रहे। और फिर दूसरा और क्या बोलूं, सर ने बहुत कुछ आपको बताया है और बाकी लोग भी अभी आएंगे अपना व्यू शेयर करेंगे। और आप लोग जब रहेंगे वी आर फैमिली, है ना, हम लोग यहाँ पे हमारा दूसरा परिवार यही है, आधे से ज्यादा टाइम हम यहाँ पे गुजारते हैं, तो हम लोग फैमिली है, मिलजुल के रहें। ठीक है, छोटे मोटे इश्यूज होंगे उसको अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करें, मिलके रहें, है ना। वी आर, बाहर कोई देखे तो डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट्स नहीं दिखना चाहिए, हम लोग सब एक हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। ठीक है, सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल और थैंक्स टू दीज स्कॉलर्स कि इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एंड माई एक्सपेक्टेशंस, ये सबसे मेरी एक्सपेक्टेशंस और इंक्रीज हो रही है कि वी कैन डू मेनी थिंग्स, हम लोग और कुछ करेंगे ताकि हमारे डिपार्टमेंट का और अच्छा नाम हो। ओके, सो आई वेलकम यू अगेन एंड थैंक यू। मैम के बात सुनने के मुझे एक बात याद आ गया जो महाभारत से रिलेटेड है, वो बस आपको एक उदाहरण के तरह मैं पेश करना चाहूंगी। मैम अभी कहा कि वो भाग्यवान वाला जो बात कि कोई भाग्य लेकर ही आता है और किसी को भाग्य बनाना पड़ता है। तो पांडवों को जब हस्तिनापुर से निकाल के खंडप्रस्थ दिया गया था, खंडप्रस्थ कितना बंजरा भूमि था, उसको उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। तो ये हम सबका जिम्मेदारी है, अगर ये सच में खंडप्रस्थ है ही